Very good morning, class 5th. Yes, how are you all? Day before yesterday, I have explained the lesson, The Adventures of the Blue Carbuncle. And yesterday I sent you the test, the assignment of that lesson. So only 3 or 4 students have sent me the test. That means, that shows that you people are not at all bothered that what the teacher is sending or what the teacher is explaining us. Here I am trying to revise all the syllabus so that it will be easier for you. But I think you people does not watch the video even. I think so, because only 3 students, they have sent me the test, that assignment, solved assignment. But it is for your betterment, it is not for me. मैं तो अपनी तरफ से टेस्ट बना के आपके लिए भेज रही हूँ. अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें लॉस आपका है, मेरा नहीं है. टीचर अपनी ड्यूटी कर रही है. नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू वॉच द वीडियो, listen to what the teacher is saying, and solve the assignments which I am sending. Okay, so rest it is up to you. Now today we will revise the poem, How Beautiful is the Rain. How Beautiful is the Rain. So this is by H.W. Longfellow. So this poem is written by H.W. Longfellow, and it is a very simple poem. Here the poet is just trying to express his feelings when the rain comes, how the atmosphere looks, how the people, how the children feel when a rain comes, and that also in a scorching heat. जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत आपका hot weather है, scorching heat है, और उसके बीच में अगर बारिश आ जाती है तो how much you welcome it, how you feel. So that is all is expressed in this poem. Now we will start the reading. How beautiful is the rain after the dust and the heat. In the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. So in the first paragraph, poet is telling that how beautiful is the rain. Rain poet को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और means beautiful लग रही है. After the dust and heat, जब गर्मी आती है, गर्मी का सीज़न होता है, समर्स होती हैं, तो you also long for a rain. तो बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हीट हो और आप बहुत यू आर स्वेटिंग अ लॉट, सो यू फील कि भगवान प्लीज़ बारिश कर दो. आप ऐसा बोलते हैं ना कई बार. तो आज भी जो रेन है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी. क्यों? बिकॉज आफ्टर द डस्ट एंड हीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट थी, डस्टी हो रखा था सारा, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए जो रेन है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी. इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट. ब्रॉड क्या होता है बच्चे? ब्रॉड मीन्स चौड़ा हो, जो ज़्यादा विड्थ ज़्यादा हो जिसकी. एंड फायरी हियर मीन्स वेरी हॉट, आग से रिलेटेड होता है, जैसे फायर से बना है फायरी, बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ आग लगी. फायरी हियर मीन्स दैट it was quite hot, and the street was in a broad, means broad, खुली. एक होता है नैरो, एक होता है ब्रॉड, ये ऑपोजिट्स होते हैं. इन अ ब्रॉड फायरी स्ट्रीट, ये हमारी जो स्ट्रीट है बहुत ब्रॉड है, बट वो बहुत ज़्यादा फायरी मीन्स बहुत ज़्यादा हॉट थी. इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन. So he is saying that the rain is looking beautiful, whether it is a broad street or it's a narrow lane. The streets are also very fiery, means they are very hot, and that is why the rain is
The feeling is very beautiful, as if they are just feeling the water drops, raindrops on them. So they are just experiencing that it looks so beautiful when there is dust and heat all over, whether it's a broad street or it's a narrow lane. But when the rain comes, obviously if the climate is too hot, so it is more than welcome. उस वक्त हम rain को बहुत ज़्यादा welcome करते हैं. How it clatters along the roof. Clatters along the roof means जब रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, पिट पैट की आवाज़ आती है. तो जब आपकी रूफ क्या होता है, छत आपके घर की, तो जब रूफ पे जब ड्रॉप्स गिरती हैं तो पिट पैट आवाज़ आती है ना, टप 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 की. सो दैट इज द clatters along the roof. Clatters means to make a loud rattling sound, टिप टॉप की आवाज़ जो आती है. How it clatters along the roofs means रूफ से वो टिप टैप करती हुई नीचे आ जाती है. Like the tramp of hooves. कैसा लगता है जब उनकी आवाज़ गिरती है, रूफ के ऊपर पड़ती है, तो टिप टैप की जो पिट पैट की आवाज़ आ रही है, वो ऐसे लगता है जैसे कि जो फील्ड में हैं सोल्जर्स अपना वो मार्च पास करते हुए जा रहे हैं. जैसे उनके जूतों की आवाज़ आती है, शूज़ की, मार्च पास करते हैं तो उनके शूज़ की बहुत अच्छी टैपिंग साउंड आती है एक रिदम में. तो हियर द पोएट इज just making a simile that the pit pat of the raindrops, the sound of the pit pat of the raindrops, it is just similar to the trapping of the hoops, tramp of hoops, like the soldiers are marching in the field. तो जो sound उनके shoes से आती है, tapping of the shoes, it is equivalent to it, just matches the clattering, the rattling of the raindrops. How it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout. Now what is spout? Spout here is means किसी भी पाइप को हम स्पाउट बोलते हैं. उसका जो माउथ होता है, स्पेशली आपने कैटल्स देखी होंगी, कैटल्स होती हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे उनके एक ये होता है, दिस इज कॉल्ड, ये जो होता है ना, ये स्पाउट होता है, और यहाँ पे उनका हैंडल होता है, ठीक है ना, एंड दिस इज द टीपॉट. तो ये जो पार्ट है, और या किसी भी जो पाइप है ऐसी वाली, उसको हम स्पाउट बोलते हैं, जो उसका आगे का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पाउट. सो वेदर यू हैव नोटिस्ड इट और नॉट दैट जब हमारी टेरेस पे रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है, तो हमने वहाँ से एक पाइप लगाई होती है, मेन होल होता है एक छोटा सा, जहाँ से कि जो सारा पानी है जो ऊपर सारा खड़ा हो जाता है, तो वो उस पाइप में से नीचे चला जाता है. तो the same thing the poet is telling you, that it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Means जब टेरेस पे पानी इकट्ठा हो जाता है, so it comes down and it gushes and struggles out, कि वहाँ से जो नीचे पाइप का माउथ है, वहाँ से जो रेन वाटर आपकी टेरेस से आ रहा है, वो एकदम ओवरफ्लो होके बाहर निकल रहा है. स्पाउट मीन्स उस पाइप के माउथ से. Across the window pane it pours and pours. और आप अगर you enjoy if you are sitting inside the house, obviously if you are playing outside that is a different thing, but if you are sitting in and enjoying it, sitting beside the window, so it feels very soothing. So they are saying that across the window pane means window pane से हम देख रहे हैं कि it is pouring and pouring means बारिश होती जा रही है, pours and pours means बारिश गिरना, and swift and wide with a muddy tide. Swift and wide with a muddy tide means ground पे मिट्टी भी होती है, ग्रास भी होता है. तो जब रेन वाटर वहाँ से निकलता है, चलता है, तो मड में इकट्ठा हो जाता है, मडी हो जाता है वाटर बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा थिक भी हो जाता है. सो एंड स्विफ्ट एंड वाइड, स्विफ्ट मीन्स थोड़ा सा मडी और थिक, मिट्टी मिल जाती है उसमें, कीचड़ जैसा बन जाता है. एंड वाइड, बाहर तो
खुला है रास्ता है, ग्राउंड है, तो वहाँ पे तो ऐसा ही वाइड हो जाता है, काफ़ी वाइड आप एरिया तक देख सकते हैं कि जो वाटर है, रेन वाटर, दैट गेट्स मडी एंड स्विफ्ट, मीन्स अ बिट थिक विद अ मडी टाइड। मीन्स अगर बारिश लगातार हो रही है काफ़ी देर तक, अगर 1-2 घंटे तक होती है, तो आप देखते हैं कि जो बारिश का पानी है वो मड के साथ मिलकर मडी वाटर, उसकी टाइड्स आने लग जाती हैं। मीन्स जैसे हम ओशंस और सीज में देखते हैं ना कि टाइड आई ऐसे करके। टाइड इज व्हेन देयर इज अ, सपोज दिस इज अ सी, सो दिस इज द टाइड दैट इज कमिंग, सो दिस इज कॉल्ड द टाइड। तो जब बारिश के बाद ग्राउंड में भी जब पानी ऐसे ही इकट्ठा होता है, तो दैट मडी वाटर दैट कम्स लाइक अ टाइड, ऐसे याद है कि लहर सी आती है उसकी एक, अगर आपने ध्यान दिया हो। लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर्स द रेन द वेलकम रेन। एंड जब ये पूरा ग्राउंड पे मडी वाटर फैल जाता है, एंड इट इज कमिंग एंड गोइंग देयर टू एंड फ्रो एंड जस्ट लाइक अ टाइड, सो व्हाट हैपन्स, इट लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स। और आगे जाके अगर जहाँ पे बड़ा सा गटर है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वो एक रिवर बन जाता है। बारिश का पानी ग्राउंड में इकट्ठा हो रहा है और आगे जाके अगर कहीं वहाँ पे गटर है तो वही पानी वहाँ से ऐसे रिवर बन के नीचे गश डाउन हो जाता है। द रेन द वेलकम रेन, एंड हियर द पोएट इज वेलकमिंग रेन। The sick man from his chamber looks, and the poet is telling about that there is one sick man also. He is looking from his chamber, means from his room where he is sitting. Here the chamber means the room. He is sitting in the room and is enjoying the rain from inside. At the twisted brooks, he can feel the cool. At the twisted brooks means वो अपने कमरे में अंदर बैठा, he is enjoying the scene of that rain and the feel of that rain. At the twisted brooks क्या होता है बच्चे? brooks जैसे हमारी रिवर तो बड़ी होती है, बट brooks होते हैं जब कहीं से छोटी सी एक पानी की धार निकलती है ना, तो वो स्ट्रीम बन जाती है, छोटे छोटे झरने जिसे हम कहते हैं, उसको हम ब्रूक्स बोलते हैं, ठीक है। एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स मीन्स कहीं से मुड़ी ऐसे ऐसे पानी ग्राउंड है और कहीं से सपोज कहीं कोई पत्थर पड़ा है या कोई थोड़ी सी हाई लेवल की जगह है, तो वहाँ से जो रेन वाटर है तो वो ऐसे पोर होता हुआ नीचे गिर रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे छोटी सी स्ट्रीम नीचे गिर रही है। एंड दैट सिक मैन इज एंजॉइंग दैट सीन फ्रॉम इनसाइड हिज रूम। ही कैन फील द कूल, और उसको बाहर से देख के उस सीन को अच्छा लग रहा है, ठंडक मिल रही है, इज फीलिंग सूद। Breath of each little pool, his fevered brain grows calm again and he breathes a blessing on the rain. So here the sick man, maybe he is suffering from a fever or whatever it is. Sick man, they have just told the sick man. So it can be as if he is feverish, उसको fever है हो सकता है, or he is running a high temperature, one and the same thing. So he is just enjoying that scene from inside his chamber, and he could see that the water coming down in the small streams. He enjoys that scene and he can feel the coolness. बाहर से वो सीन को देख के ही उसे ठंडक मिल रही है। Breath of each little pool, his fevered brain grows calm again. तो बाहर के जो बारिश के सीन देख देख कर उसका जो दिमाग है, जिस बहुत ज़्यादा फीवर्ड ब्रेन, यस हियर दे हैव टोल्ड अस दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो उसका जो ब्रेन है, हेड है, वो भी हाई फीवर से, ही इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। तो बारिश की जो सीन देख देख के उसको उसके यहाँ पे माइंड में भी कूलनेस आ रही है, ठंडक आ रही है, ही कैन फील द कूलनेस इन हिज माइंड एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वो रेन को वेलकम करता है, उसे ब्लेस करता है कि थैंक गॉड द रेन हैज़ कम डाउन सो दैट ही कैन फील अ बिट कूलनेस inside his body as well as his brain. From the neighboring school come the boys. Then comes the boys. So from where they are coming? From the neighboring school.
So when we are talking about rain and we just don't talk about the school boys or the children, so it is just incomplete about the children. क्योंकि जब भी हम रेन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले बच्चों पे जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इंजॉय करते हैं. क्यों? क्योंकि वो बाहर जाते हैं खेलने, दे इंजॉय, दे टेक बाथ इन रेन, दे जस्ट प्ले, दे डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन द रेन. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट the children love about rain. They can do so many activities, right? So from there, from the neighboring school come on the boys. तो पास ही में कोई स्कूल है, वहाँ से स्कूल बॉयज आ रहे हैं with more than their wanted noise. So it is but obvious that when children goes back to home from the school, when the school goes off and they go back to school, so they are in a very happy mood. They are making a lot of louder noises, but when they have seen that there is a rain, so their noise is just more than usual. तो उनकी जो आवाज़ें हैं, साउंड्स हैं, वो यूजुअल से थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची और चीयरफुल है. एंड कमोशन, और कमोशन होता है जहाँ पे थोड़ा सा क्योस हो. क्योस नहीं आपको समझ आएगा कि जहाँ थोड़ा रश हो, कोई इधर जा रहा है कि उधर, जिसको समझ ना आ रहा हो, कन्फ्यूजन जिसे कहते हैं हम. Chaos. Exact word is chaos, but chaos is also difficult for you. So here commotion means confusion. So they are confused also. And down the wet streets sail their mimic fleets. Yes. So they are just going to their homes and they are very happy. The sounds are more than usual. बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ें और cheerful आवाज़ों में वो आ रहे हैं. They are enjoying it. And lot of commotion is there, means there is a lot of confusion also. Chaos. Yes, they have also given the word chaos. Means थोड़ा सा भगदड़ जैसा हो जाता है. कौन किधर जा रहा है कुछ समझ नहीं आता. Down the wet streets sail their mimic fleets. Mimic होता है when जब हम किसी की कॉपी करते हैं, नकल उतारना. तो mimic fleets होता है, sail their mimic fleets. लाइक फ्लीट होता है बच्चे जब बहुत सारी शिप्स इकट्ठे सेल करती हैं, उनको हम फ्लीट बोलते हैं. यहाँ पे वो बोल रहे हैं सेल देयर मिमिक फ्लीट्स, मीन्स यहाँ पे वो स्टूडेंट्स का जो झुंड है वो इकट्ठा निकल रहा है ऐसे करके. तो यहाँ पे पोएट ने जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, स्कूल बॉयज़ का, उसको उन्होंने सिमिलराइज किया है किससे? फ्लीट से. मिमिक फ्लीट्स मीन्स वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे शिप्स सेल करती हैं ना सी में, ऐसे ही जो बॉयज़ हैं, स्कूल बॉयज़ हैं, वो भी उनके जो ग्रुप्स हैं वो सेल करते हुए, इंजॉय करते हुए, दे आर गोइंग बैक टू देयर होम्स, दे आर इंजॉइंग देयर वे बैक होम. सो हियर द पोएट हैज़ मेड द सिमिली of boys, the fleet of boys with the group of boys going back to home with the fleet, till the treacherous pool engulfs them in its whirling and turbulent ocean. और वो सेल करते हुए, इंजॉय करते हुए, जैसे शिप सेल करती हैं वैसे ही वो सेल करते हुए, मीन्स सेल मीन्स इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं ऐसे. तो वो ऐसे लग रहा है जैसे कि शिप सेल कर रही हूँ, ऐसे जा रहे हैं बॉयज़. टिल द ट्रेचरस पूल, तब तक वो ठीक से जा रहे हैं, ऐसे लगता है सेल कर रहे हैं. कब तक? टिल द ट्रेचरस पूल. ट्रेचरस यहाँ पे होगा, वैसे ट्रेचरस का मीनिंग होता है जो आपको थोड़ा सा परेशान करता हो, क्रूअल टाइप थोड़ा सा, बट यहाँ पे ट्रेचरस का मीनिंग कुछ और है. ट्रेचरस पूल मीन्स पानी, पडल्स बन जाते हैं ना जब बारिश होती है, तो छोटे छोटे गड्ढे भी भर जाते हैं पानी से, राइट? आपने देखा होगा छोटे से गड्ढे हैं अगर, तो वो भर जाते हैं पानी से. ट्रेचरस पूल यहाँ पे उन्होंने क्रूअल, जैसे यहाँ पे पोएट ने उसको ट्रेचरस बोला है, जस्ट एक पोएटिक लैंग्वेज में डाला है उसने. engulfs them in its whirling and turbulent ocean. लाइक वो अपना एन्जॉयमेंट से जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और उनको आगे नहीं मालूम है कि एक छोटा सा पडल है पानी का. पडल मीन्स गड्ढे में पानी भर जाता है ना, जैसे बिकॉज देर इज सो मच ऑफ रेन वाटर ऑन द स्ट्रीट, सो दे जस्ट कांट सी दैट देर इज अ puddle on their way, and they just that puddle that engulfs them means surrounds them. तो वो जो puddle में गिर जाते हैं और जो सारा पानी है
पूल का वो उनको सराउंड कर लेता है. टर्बुलेंट ओशन लाइक मीन्स ऐसा लगा कि जैसे वो बच्चे उस पडल में गिरे तो ऐसा लगा कि जैसे ओशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई. So in the country on every side where far and wide, like a leopard's tawny and spotty hide, stretches the plain to the dry grass and the drier grain. How welcome is the rain. So this is how the poet has explained the enjoyment of the schoolboys. And now in the last stanza, he is telling you about that in the country on every side. मीन्स चारों तरफ बारिश के बाद कैसा लग रहा है. वेर फार एंड वाइड, दूर दूर तक जब मैं देख रहा हूँ. लाइक अ लेपर्ड्स टॉनी एंड स्पॉटी हाइड, जब बारिश पड़ती है तो हमारा जो व्यू है, क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है. क्योंकि पहले डस्ट होती है एयर में तो थोड़ा सा ब्लर होता है. बट बारिश के बाद आप देखें, आप ऑब्जर्व करना, जो हमारा व्यू होता है पूरा वो एकदम क्लियर हो जाता है, स्पॉटलेस. बहुत ज़्यादा आसमान भी क्लियर लगेगा आपको, पेड़ पौधे भी क्लियर लगेंगे और सब आपको साफ़ सुथरा सा नज़र आएगा. जैसे कि जब आप नहा कर बाहर निकलते हैं तो आप क्लीन क्लीन से फील करते हैं, तो ऐसे ही आपका पूरा जो सराउंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन एंड टाइडी सा नज़र आता है. वॉश्ड एंड क्लियर व्यू. लाइक ए लेपर्ड टॉनी एंड स्पॉटी हाइड मीन्स जैसे कि लेपर्ड की जो स्किन देखी आपने, येलो होता है और उस पर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं. तो ऐसे ही पोइट कह रहा है कि दूर दूर तक जैसे बीच में ग्रास है येलो ग्रीन कलर का और बीच में छोटे छोटे पार्ट्स हैं ग्राउंड के जो थोड़े डार्क ब्राउन कलर के हैं, तो वो उसको जो पूरा व्यू था वो एकदम लेपर्ड की स्किन जैसा लग रहा था. येलो येलो ग्रीन ग्रीन ग्रास, ट्रीज, फ्लावर्स एंड ऑल दैट, एंड बीच में कहीं कहीं ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स. Stretches the plain to a dry grass and the dry grain. मीन्स कहीं पे सूखी घास होती है तो वो हल्की येलोइश कलर में हो जाती है. तो दैट इज़ वाई दैट पोएट इज ही इज जस्ट कंपेयरिंग दैट लेपर्ड स्किन टू द पैचेस ऑफ द ड्राई ग्रास एंड द ग्राउंड. कहीं हरी घास है तो कहीं पे थोड़ी ड्राई ग्रास है जो कि येलोइश हो रही है थोड़ी, तो और बीच में ग्राउंड का पार्ट है जो हल्का ब्राउनिश ब्लैक है. So he could feel that the view appears like a leopard skin, spotted, kahin green, kahin yellow, kahin dark. To the dry grass and the dry grain, how welcome is the rain. And everybody, everywhere is welcoming and enjoying the rain. So with this we have completed with the poem. And it was a very beautiful and simple poem. Everybody, the poet has touches the each and every part, that how each and every person, whether he's a old man, sick man, or he's a schoolboy, or our nature, our surrounding, everything is enjoying the rain. So here he has touched all the parts. Now we come to the question answer exercise part. Come to here, that page number 98. Read the following stanza and tick the correct option. How it clatters along the roof like the tramp of hooves. How it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout. So what does it refer to? यहाँ पे it किसको refer कर रहे हैं? How it clatters. So is it referring to boy, brook, rain or dry grass? So here it refers to how it clatters, means how it यहाँ पे क्या है? Rain. So the C part. What sound does the rain make? कौन सी साउंड रेन बना रही है? ट्रैम्पिंग, गश, रंबल और क्लैटर. So just check in the second stanza how it clatters along the roof. Clatters. So in this paragraph only clatters along लिखा हुआ है ना ऊपर. फर्स्ट पोएम का लाइन ये पढ़ो, स्टैंजा जो आपको दिया है इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है clatters along the roofs. So it is making clattering sound. Which word refers to pipe? Now here there is a correction. ठीक करो आप सब बच्चे, बुक्स अपने आप में खोली हुई हैं. The which word refers to pipe here? It is not throat, it is spout. Spout आएगा यहाँ पे, throat नहीं आएगा. सभी बच्चे ठीक करो, इसे करेक्शन है ये.
स्पाउट मैंने आपको समझाया क्या होता है, इट्स अ पाइप। पाइप को बोलते हैं, चाहे वो कैसी भी शेप में हो पाइप, तो हम उसको, ये जैसे ये छोटी सी पाइप होती है कैटल पे, या कोई ऐसी पाइप हो, या जहाँ से मैंने आपको बताया कि वो पानी आता है छत से, और नीचे जो स्पाउट है उसका जो माउथ है वहाँ से पानी निकलता है सारा, इट गशेस आउट। सो हियर इट इज़ अ करेक्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नॉट द सी. So all of you corrected. What are the children saying? Read the speech bubbles and write the number in the given space. So you have done this. So we can do some extra questions from this. Why is the rain beautiful when it falls in the street? Can you say that? Can you tell me that why it is beautiful? So we can do like this. जैसे एक पैराग्राफ इन्होंने दिया, हाउ इट क्लैटर्स अराउंड द रूफ, हम भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं ना इसमें से, आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी. So why the rain is looking beautiful? Because rain is looking beautiful after the dust and heat, because there was so much of dust and heat. So that is why it is. In the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. Do you know what are rhyming words? Do you know about it? So in the second paragraph, so what is the poet? I think this question is there here. So in the second paragraph, how it clatters along the roof. So what is poet comparing the clattering of the rain with? Poet is saying na, how it clatters along the roof like the tramp of hooves. Means यहाँ पे clattering को किससे compare कर रहा है? Tramp of hooves से. So here the clattering of the, so I can ask you this question that the poet, with whom the poet has, write down the comparison of the clattering of the rain with which the poet has compared the clattering of the rain. So you will write, the poet has compared the clattering with the tramping of hooves. So you should write this. I will ask you questions from the poem next day. Today I am explaining you the poem, and the next day, the very next day, before after explaining that part, I am going to give you the assignment of that which I have revised or which I have explained. So listen to me very carefully, because next day I am going to send the assignment from this poem only. So here we can write down the rhyming words like heat, street, lane, rain, roofs, hoops. So I can ask you that find out the two pairs of rhyming words, or I can tell you, I can ask you that write down the opposite of the words. Like I can tell you to find two opposites from this poem. So two opposites from the poem क्या हो जाएंगे हमारे? Broad. इसका opposite क्या होगा? Narrow. तो इसमें से find out the opposites. From the poem. तो फर्स्ट तो हमने निकाल लिया, ब्रॉड का क्या होता है? नैरो. एक और ढूंढे. डाउन है, इसका अप कहीं दिख रहा है हमें? लिटिल, लिटिल भी है. देयर इज वन ऑपोजिट ओनली, फार. फार एंड स्विफ्ट एंड वाइड है.
वेट हो सकता है, ड्राई का. इज देयर एनी वर्ड वेट इन दिस? वेट भी नहीं है, ड्राई तो है. स्पॉटेड on every side. फार, फार तो है पर नियर नहीं है यहाँ पे. Yes, one more I have found finally. Wet, dry. So these are the two pairs of opposites I have find out. Just see here. Down the wet streets. Out, out का हम in भी कर सकते हैं. In the narrow lane. In and out भी है इसमें. In and out. थर्ड पेयर भी मिल गया मुझे. अब देखते हैं और मिल रहा है हमें कोई ऑपोजिट इसमें से. In out भी हो गया. अब यहाँ पे है डाउन. आप दिख रहा है कहीं हमें? फाइंड आउट इफ देयर इज सम अप. In the country to the dry grain. No. So you just revise this poem properly. So tomorrow I will send the assignment from this poem only. Okay, question answers can be, it can be question answers, it can be like this, it can be the rhyming words, or it can be make sentences, anything like that. Okay, so be prepared.